Good morning, students. I welcome class 11 to the virtual class of physics, and the chapter which we are going to start is gravitation, planets and satellite. So we start with the Newton law of universal gravitation. In 1686, Newton stated that in the universe, each particle of matter attract every other particle. This universal attractive force is called gravitation. Newton gave the following law about gravitation. The force of attraction between any two material particle is directly proportional to the product of the masses of the particles and inversely proportional to the square of the distance between them. It acts along the line of joining the two particles. जो दोनों को जोड़ रहे हैं अभी हम उसको क्लियर कर लेंगे. Suppose two particles of masses m1 and m2 are situated at a distance r apart. r दूरी पर दो पार्टिकल है इस तरह से, ठीक है. If the force of attraction acting between them is F, then according to Newton's law of gravitation हमारे पास क्या है, F प्रोपोर्शनल है m1 m2 बटे r स्क्वायर के, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगेगा g, F बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर. द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जी को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू जो है इज सेम फॉर ऑल द पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स, जितने भी हैं. Although Newton's law of gravitation applies strictly to particles, but it can be applied to the extended object as well, provided the size of the objects are small compared to the distance between them. For example, moon and earth are far enough so apart. To a good approximation, we can treat them both as point masses. पॉइंट मास मानेंगे और इस पे लॉ को लगाएंगे क्योंकि बहुत दूर है, उनके साइज़ के हिसाब से उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है. Spherical symmetry bodies attract external particles as if their entire mass is concentrated at the center. Center of mass पढ़ा था कि सारा मास हम मान के चलते हैं कि सेंटर पे concentrated है. Hence the law of gravitation is applicable to them, whatever the size be. So evidences is support of Newton law में कौन कौन से evidences है? It is universal law, मतलब it explain motion of heavenly bodies, particle that of planets, the moon and the sun. सब पे यूनिवर्स के हर चीज़ पे लगती है. द प्रेडिक्शन ऑफ सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स जो होता है, मतलब आपके जो ग्रहण होते हैं वो भी इसी के बेस पर है. जो आपके टाइड्स होते हैं ओशन में, जो आपके बड़े बड़े ज्वार भाटाएँ आती हैं, वो भी मून और ओशन वाटर के बीच ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से ही होता है. द प्रेडिक्शन अबाउट ऑर्बिट्स एंड टाइम पीरियड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का जो निकालते हैं वो भी इसी लॉ के बेस पर निकालते हैं. तो इसको लिखते कैसे हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो दो मासेस हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों के बीच की दूरी r है, यहाँ से यहाँ r12, यहाँ से यहाँ r21. सो वी कैन कंसिडर 2 point masses m1 and m2 at a distance r apart. Let r12 be a unit vector pointing from mass m1 to m2 and r21 is a unit vector pointing from m2 to m1. Then the gravitational force F12 exerted on m1 by m2, m1 पे m2 द्वारा is given by magnitude of direction by the vector relation. क्या लेते हैं? F12 बराबर माइनस जी m1 m2 बटे r स्क्वायर, और r जो है वो 2 से 1 पे है. माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है दैट F12 पॉइंट इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट जो है वो r21 के हैं. दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव. m1 experiences a force direct towards m2. The force exerted on m2 by m1 is similarly उल्टा हो जाएगा. m21 will be minus g m1 m2 बटे r square into r12, क्योंकि r12 बराबर होता है माइनस ऑफ r21 के, तो हम इसको कह सकते हैं F12 बराबर माइनस ऑफ F21. तो इसके ग्रेविटेशन फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? The vector nature of the law of gravitation and experimental observation reveal the following characteristics of the gravitation forces between two bodies. क्या है? ये हमेशा attractive forces हैं और ये action reaction पेयर करता है, मतलब फोर्स exerted by two bodies on each other are equal in magnitude but opposite in direction होता है. फिर these are central forces and that is they act along the line of
जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडीज़, मतलब सेंटर से लाइन ज्वाइन करके, ठीक है, इनको हमेशा शो किया जाता है, चाहे कैसे भी बॉडी उसके सेंटर से हम लेंगे। दीज आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज़। कोई तीसरी बॉडी अगर यहाँ रखेंगे तो उसके प्रेजेंस से इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद है आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमें F बराबर G m1 m2 बटे आर स्क्वायर निकाला है। अगर हम m1 m2 को 1 और r को भी 1 पुट कर देते हैं तो G किसके बराबर आ जाएगा, F के, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें 1 1 1 हो जाएगी, 1 × 1 बटे 1 सब 1 हो जाएगा, तो F और G बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, thus the gravitational constant G is numerically equal to the force with which two particles each of unit mass and placed at a unit distance apart attract each other। यूनिट ऑफ जी क्या होगा, जी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर निकालना चाहे तो जी को यहाँ रखे, बाकी सब इधर ले जाए तो आर स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। तो ऐसा यूनिट फोर्स का क्या है, डिस्टेंस का, और मास का अगर हम रखेंगे तो फोर्स का न्यूटन, मास का मीटर और किलोग्राम वजन का, वेट का। तो हमें एसआई जी का कितना मिलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या इसको हम न्यूटन में वैल्यू के न्यूटन का मान रखकर भी वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। द CGS यूनिट जी जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रेविटी की। इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशन is the force of attraction acting between any two bodies. If one of the bodies earth, then the gravitation is called gravity। मतलब gravity is the force जिसके द्वारा अर्थ अट्रैक्ट करता है बॉडीज़ को अपने सेंटर की तरफ। क्लियरली ग्रेविटी इज स्पेशल केस है ग्रेविटेशन का। इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटी दैट बॉडीज थ्रू फ्रीली अल्टीमेटली फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। जैसे उछाल देते हैं तो वो फ्रीली नीचे ही आके गिरता है। अब आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। When a body is dropped down freely from height, it begin to fall towards the earth, ठीक है, under gravity, and इसकी जो velocity है वो continuously increase और fall continuously increases. The acceleration developed in its motion is called acceleration due to gravity. Thus, the acceleration due to gravity is the rate of increase of velocity of a body falling freely towards the earth. इसको डोनेट करते हैं G से। It does not depend upon the shape, size, mass, etc. of the body. If m be the mass of a body, then force of gravity acting on it is mg कितना होगा, weight of the body के बराबर। Therefore, acceleration due to gravity is equal in magnitude to the force exerted by the earth on a body of a unit mass. The unit of acceleration due to gravity कितना होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन पर केजी। The universal constant G is different from small g. The constant G का डायमेंशन होता है m-1 L3 T-2 और इसको स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि G हैज़ अ डायमेंशन LT-2 और ये वेक्टर है और ये यूनिवर्सल भी नहीं है और ये कांस्टेंट भी नहीं है। अगर मैं इनके बीच में रिलेशन निकालना चाहूँ तो सपोज दैट द मास ऑफ द अर्थ इज m एंड द रेडियस इज r। अज्यूमिंग अर्थ को स्फेयर मान रहे हैं, एंटायर मास m जो है सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी सिचुएटेड एट द surface of the earth, so at a small height above the surface, the height being negligible compared to the radius of the earth, hence the distance of the body from the center of earth may be taken as re. According to the law of gravitation, the force of attraction acting on the body due to earth is given, किससे देंगे, F is equal to G m बटे r square. The acceleration due to gravity G in the body arises due to the force F. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या मिलता है, F इज इक्वल टू mg बराबर G m बटे आर स्क्वायर आ जाता है। इस इक्वेशन को हम दोनों को बराबर, क्योंकि दोनों F के बराबर है तो m से m कटेगा, मेरे पास G कितना आएगा, G m बटे आर ई स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन इज फ्री फ्रॉम m. This means that the value of G does not depend upon the mass of the body. Hence,
इफ़ द बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस बी अलाउड टू फॉल फ्रीली, अगर हम बड़ा कोई आपका पत्थर ले ले या कोई बॉल ले ले और एक साथ ड्रॉप करे, बॉल छोटा हो उससे, तो भी दे विल हैव द सेम एक्सेलरेशन. इफ़ दे अलाउड टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट दे विल रीच द अर्थ साइमल्टेनियसली. ऐसा हमें दिखता नहीं है कभी कभी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, जैसे कि एयर का रेजिस्टेंस हो गया, इस तरह के और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सेम दिखता नहीं है. पर एक्चुअल में अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को, एक बड़ा सा बॉल और एक छोटे बॉल दोनों का वजन अलग अलग है, उसको मैं फ्रीली फॉलिंग पे छोड़ दूँ और पूरे एक्सपेरिमेंट को अगर मैं वैक्यूम में करूँ तो मुझे दिखेगा दोनों एक साथ ही गिरते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हाउएवर द बायोनेंसी इफेक्ट एंड द, ये देखिए लिखा है, viscous drag will cause different acceleration in the body. In this case the heavier body will reach the earth before. अब जो दूसरा है वो है आपका वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वेरीज एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. एल्टीट्यूड, हाइट जाते हैं तो g बदलता है, और अगर हम नीचे जाते हैं तभी बदलता है. तो कैसे बदलता है देखें. इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड, हम ओ अर्थ का सेंटर है, h हाइट पर हमने एक बॉडी स्मॉल m को रखा है, अर्थ का रेडियस r e है, तो हम अभी हमने पढ़ा था वेट mg ऑफ द बॉडी क्या होगा, दैट इज mg इज इक्वल टू जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर, जहाँ g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ. लेट द बॉडी m को हमने रेस किया है h हाइट पर, ठीक है. तब हमारा नया g क्या होगा, जी एम ई डैश इज इक्वल टू जी एम ई एम बटे आर ई प्लस h, क्योंकि अब पूरी रेंज यहाँ तक हो गई है का स्क्वायर. अब हम अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जी डैश बटे जी किसके बराबर आएगा बच्चों, जी डैश बटे जी हमारा किसके बराबर है, आर ई स्क्वायर ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. जी डैश ओवर जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा, ठीक है. अब ये तो कटा, हमें क्या मिला, आर ई बटे आर ई, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक. ये होगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर. अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एच अपॉन आर ई का पावर -2. अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे जिसके अनुसार 1 प्लस एक्स टू द पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बटे 2 एक्स स्क्वायर, और ये आगे चलता जाता है. 2 टर्म ही तक लेते हैं क्योंकि आगे के टर्म्स बहुत छोटे हो जाते हैं. तो इस पर अगर हम बाइनोमियल लगाएंगे तो जी डैश बराबर जी आएगा मेरा 1 प्लस -2, क्योंकि n पहले आ जाता है, n यहाँ -2 है, n h अपॉन आर ई. तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई. तो आप देख रहे हो 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब जी डैश छोटा होगा जी से, जी हमेशा उससे बड़ा आएगा. तो ये वैल्यू आपको मिल गई. अब हम इफेक्ट ऑफ डेप्थ पढ़ेंगे. लेट अ बॉडी पी ऑफ मास बी सिचुएटेड एट द डेप्थ h, यहाँ रखा है, below the earth's surface. Its distance from the center O of the earth is re minus h, क्योंकि इतना नीचे आ गया h तो बचा कितना re minus h. Let a sphere be drawn, यहाँ से एक सेंटर से हमने एक स्फेयर, ठीक है, h हाइट पर है तो बचा कितना re प्लस h. यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. The body P is situated at the surface of the inner solid sphere, इसके ऊपर है, ठीक है, and lies inside the outer spherical shell, इसके यहाँ पर है. The gravitation force of attraction on a body inside a spherical shell is always 0. तो हमें पता ही है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं. The gravitation force of attraction of a body inside spherical shell is always 0. Therefore, the body P experiences gravitational attraction only due to the inner solid sphere. तो मास कितना हो जाएगा, m डैश बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई आर ई माइनस एच का क्यूब इंटू डेंसिटी लगा लिया. क्यों, हमें पता है मास इज डेंसिटी टू वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम हो गया क्योंकि स्फेयर है, और ये डेंसिटी हो गया. वेयर रो इज़ द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी कितना होगा, जी एम ई एम बटे आर ई माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई की जगह ये लिखेंगे अपॉन ये आर ई माइनस एच का स्क्वायर आ गया, ये कटा, एक बचा, तो 4/3 पाई जी आर ई माइनस एच इंटू रो इंटू एम.
This force must be equal to the weight of the body mg dash, where g dash is the acceleration due to gravity at a depth h below the surface of the earth. Thus mg dash is equal to 4/3 pi g re minus h into rho m. Similarly, if a body be at the surface of the earth, h शून्य है, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू 4/3 पाई जी re रो इंटू एम. ये हमने वही लिया, h हटा दिया क्योंकि अब कोई हाइट पे नहीं है. अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तब मेरे पास कितना आएगा, तब मेरे पास आएगा g डैश ओवर g इज इक्वल टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई. इसको सॉल्व करके देखिएगा, अलग अलग कर लीजिए. तो g डैश कितना आएगा, g 1 माइनस एच अपॉन आर ई. मतलब फिर से क्या होगा, फिर से एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम ज़ीरो. किस पे, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेयर एच इज इक्वल टू आर ई. तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनकर आता है कि यदि मैं इस गड्ढे को खोदते हुए सेंटर तक चली जाऊँ और यहाँ से यहाँ तक निकल आऊँ तो मैं यहाँ बॉल डालूँगी तो क्या इस एंड से वो कब निकलेगा. तो इसका उत्तर होता है कभी नहीं निकलेगा, नेवर, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा. बिकॉज जैसे ही वो सेंटर आएगा आर ई बराबर आज एच हो जाएगा. आर ई बराबर एच होते हैं ये आपस में कट जाएंगे और जी डैश कितना हो जाएगा उस कंडीशन में, जी डैश हो जाएगा आपका ज़ीरो, जो कि पॉसिबली नहीं है. मतलब ग्रेविटी ही ज़ीरो हो गई. अगर ग्रेविटी ही आपकी ज़ीरो हो गई है तब आपकी बॉडी जो है वो किसी भी पुल से बाहर नहीं आएगी. तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. हम नेक्स्ट लेक्चर पे इसी को आगे सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.